ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کی بندش دراصل ہزارہ کے وسائل پر قبضہ اور 8 اضلاع پر مشتمل ہزارہ کی 1 کروڑ کی آبادی کی ثقافت اور کلچر پر حملہ ہے۔ ریڈیو پاکستان 1981 میں قائم ہونے اور 1991 میں اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کرنے والا ہزارہ کا واحد سرکاری نشریاتی ادارہ ہے جو ہزارہ کے فنکاروں، ادیبوں، صحافیوں اور شعراء کی آواز ہے۔ اس ادارے کی بندش دراصل ہزارہ کی ثقافت کی زبان بندی ہے۔ گندارہ ہندکو بورڈ ہزارہ شاخ کے زیر اہتمام ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کی بندش کی حکومت کے غیر دانشمندانہ فیصلے کے خلاف احتجاجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک میں سارے قومی ادارے منافع کمانے کے لیے قائم نہیں کیے جاتے۔ فلاحی اور رفاہی ادارے کسی مقصد اور مشن کے تحت قائم کیے جاتے ہیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے کر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اور اس واسطے گندارہ ہندکو بورڈ پشاور اور پریس کلب ایبٹ آباد جڑے انہیں مل کے پروگرام ترتیب دیتے۔ گندارہ ہندکو بورڈ جڑے بنیادی طور پر جس طرح نہ تو بھی واضح ہے ہندکو واسطے کام کرتے، لیکن ہندکو دے نال نال باقی بھی وہ زبان جنہ تک زیادہ کام نہیں ہوتا، گوجری، کوستانی، چترال جڑی ہے جو کہ اس کا نام آتے وہ پہاڑی ان زبانوں واسطے بھی کام کرتے تھے۔ اس واسطے گندارہ ہندکو بورڈ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ اسی بھی آواز اٹھاواں، کیونکہ ریڈیو اسٹیشن ایبٹ آباد جڑا سا اس صرف ایک حکومت کا ترجمان نہیں ہوتا ہے، ریڈیو اسٹیشن جا قومی ریڈیو اسٹیشن ہوتے بلکہ یہ لوگوں کا ترجمان ہوتے، اور اس کی موجودگی میں جتنا زیادہ یہ ایکٹیولی کم کرتے اسٹیشن اتنا ہی زیادہ اصلی زبان کلچر دا تحفظ ہوتے، انہیں ترقی ہوتی ہے۔ اصل جڑے فنکار ہیں انہیں موقع ملتے، جڑے صحافی ہیں، جڑے دانشور ہیں، جڑے ادیب ہیں، لکھاری ہیں، انہوں سارے کو موقع ملتے کہ وہ آ کے اس کا اپنی گل کرتے ہیں اور اپنی آواز پہنچانے، اور نال نال اصل کا کلچر جڑے اس کی بھی پروموشن کا ایک بڑا ذریعہ ہوتے۔ اصل اس ریڈیو اسٹیشن کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل کی آواز جڑی ہے، اصل کا کلچر جڑے اور یہ ساری چیزیں جڑے اس کو بند کرتے تکے۔ اس کی مذمت واسطے بند کرنے کے اقدام کی مذمت اور اس کی بحالی واسطے جڑی ہے یہ اساں کوشش کی ہے کہ اسی مل کے یہ کوشش کریں تاکہ اسٹیشن بحال ہوئے۔ یہی اس کے پروگرام کا سارا نقصان ہے، اور تو ظاہر کسی نقصان نہیں۔ ہزارے کی جی ثقافت ہے اور ہزارے کے جڑے مسائل ہیں انہاں حکام تک پہنچانے واسطے یا انہاں ہائی لائٹ کرنے واسطے یہ ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے ختم کیتا گیا، اور اس ادارے نال نقصان جڑا ہویا مقامی جتنے بھی اساں دے فنکار ہون، ساڈے شعراء، ساڈے باقی لوگ ادب نال جنہاں دا واسطہ ہے، انہاں ساریاں واسطے مسائل پیدا کیتے گئے، انہاں بے روزگار کیتا گیا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہزارے دی نمائندگی تے پہلے ہی کرے بھی نہیں، تے ایک نکا جا ریڈیو اسٹیشن ہے گو کہ وہ پوری ہزارے دی ضرورتاں نہیں پوریاں کردا ہے، لیکن چلو رونے واسطے چپ تے بنی دی، لیکن وہ چپ بھی ختم کیتی گئی ہے تے شرم دا مقام ہے اساں سارے واسطے، اور خاص طور تے جڑے ہزارے دے لوگ بڑیاں بڑیاں پوزیشناں تے بیٹھے دن اور ہزارے دے نائیں ہوتے جل کے بیٹھے دن، انہاں اس پاسے توجہ دینی چاہیے، اور کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہے تے اس ریڈیو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اور میں جس طرح اندر بھی گل کیتی کہ ہزارے دے اگر ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد تے خرچہ آندا ہے 1 کروڑ روپیہ تے اس تے پروگرام سیکشن ہوتے اس وچوں 10 لاکھ بھی نہیں آندا، باقی سارے انہاں دی تنخواہاں وچ چلے جلدے تے اس طرح کرن کہ اس ادارے ری آرگنائز کر کے اتنے بڑی بڑی تنخواہ والے لوگ چلیں، انہاں بے شک آپ کو بلا کے اتنے کانٹریکٹ بیس سے کچھ لوگاں رکھ کے تے تقریباً 1 لاکھ 2 لاکھ یا 3 لاکھ وچ اسٹیشن چل لگتا ہے۔ اس طرح چل رہنا چاہیے، اور پی ٹی آئی دی گورنمنٹ جڑی ہے انہاں کے خاص طور تے گزارش کرساں کہ تقریباً تمام ادارے جڑے ہیں تساں کولو خفن اور تساں دے دور حکومت وچ ادارے تباہ پہ ہوندے تے مہربانی کر کے ہزارے دی ایک ہی آواز ہے، اس آواز نوں بند نہ کرو گو کہ اتنے باقی اور چینل کام کر دیں، لیکن گورنمنٹ سطح تے جڑا چینل ہوندا ہے اس دی ظاہر ہے زیادہ لوگ اس تے توجہ دین کہ اتنے انہاں مواقع زیادہ مل دیں۔ اس بند نہیں ہونا چاہیے، اس جاری رہنا چاہیے، اور نہ صرف جاری رہنا چاہیے بلکہ اس کا ٹرانسمیٹر اتنا بڑا کیتا جلے کہ یہ پورے ہزارے وچ اس کی آواز جلے، اور ہزارے دیاں ساریاں زباناں جنہاں وچ ہندکو تو علاوہ پشتو ہے، ساری گوجری زبان ہے، ساری شینا زبان ہے، اسی طرح مختلف زباناں، پھر ساری قومی زبان اردو ہے، یہ سارے پروگرام اتوں ہون تے لوکاں پتہ لگے اور اس علاقے دے بارے بھی لوکاں پتہ لگے۔ اور خاص طور تے جی گل اسی ٹورزم دی سے گل کرنے ہیں تے ٹور جسے ٹورسٹ اتنے آتے ہیں انہاں گائیڈ کرنے واسطے سرکاری سطح کا کوئی اسٹیشن ضرور ہونا چاہیے کہ جڑا انہاں لمے بلمے دی خبر دے کہ تساں کہڑے پاسے جلنا کہڑے پاسے نہیں آنا، تے اس نال
दे टूरिज्म डिपार्टमेंट नाल भी अपना कोई इताद करके नन ते मेरा ख्याल है उतने फंड से वो भी ना देखते हैं। बहरहाल स्टेशन बंद नहीं होना चाहिए, इस जारी रहना चाहिए कि साड़ी एक आवाज़ है, गो कि छोटी जी नाइफ सी आवाज़ है, लेकिन आवाज़ से है कि इस जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। एक्सप्रेस न्यूज़ असी बड़े मशहूर हाँ कि असा मौका दिया कि साढ़ा जो अज का जो प्रोग्राम है गंदारा इनको बोर्ड पेशावर के हवाले कि इतने और प्रेस क्लब के तावन नाल कि जो बाद रेडियो की बंदिश है इसके खिलाफ असा अज मुश्तरका जदोजहद का ऐलान किया और इसका आगाज़ किया पिछले बाद भी समझना कि इस जो सारे जितने भी लोग शरीक होए वो बड़ी उन्होंने अपनी जी अपने आप जी बड़ी अहमियत है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वकला है और इस अलावा जो इस शोबे नाल मुंसलिक है रेडियो पाकिस्तान नाल जिस शोबे इस प्रोग्राम में जाते हैं उन्हें इस चीज़ का अहद किया है कि असी इंशाल्लाह इस बाद रेडियो की बंदिश का फैसला है इंशाल्लाह इस खास आवाज़ बुलंद कर सा और अपने मुंतखब अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर तक ये असी इंशाल्लाह उन्हें इस गल मजबूर कर सा कि जिस तरह मिठी का जो स्टेशन है वो रमेश कुमार एक टेलीफोन से वज़ीर आज़म को वज़ीर इतलात को उस बहाल करवाता है, इस तरह असी भी इन्होंने दबाव पा के इंशाल्लाह असी अपना जो बाद जो स्टेशन 1991 काम है और इससे क्या मैं समझना तमाम जितने भी स्टेक होल्डर है चाहे शुरा है अदीब है सहाफ़ी है हैं जी जितने भी तंदे लोग है स्पोर्ट्स मैन है कल्चर के लोग है जितने भी फनकार है उन्हें अपना जदोजहद की है और असा एक मंजिल हासिल की है और आज एक कलम या जुम्बश ये पाना बढ़ा के इस माली तौर पर स्टेशन कमज़ोर है भी समझना कि माली तौर पर कमज़ोर नहीं है, इसका कमज़ोर किया गया और ये हज़ारा टैलेंट की कमी नहीं ये तुम यकीन करो जिस तरह साढ़े दोस्त काशम मलिक साहब जो तजवीज़ थी कि 35 रुपये तुम बिजली बिल टैक्स कहते हो PTV का वही चाह दो ना असा हज़ारे की आबादी के लिहाजा जो साढ़े को कहते हो वही चाह दो तो असी इंशाल्लाह इस रेडियो पाकिस्तान TV भी चला के नहीं समझना कि असी हज़ारे के लोग किसी तरह भी मुल्क के दीगर सूबे इलाके की तरह कम नहीं टैलेंट के लिहाज नाल लियाकत के लिहाज नाल हर लिहाज सियासी तौर पर भी कि ये अपने हक से लड़ते भी हैं और हक खेलना जानते भी हैं और मैं समझना कि इस तो पहले माजी में जो मसाला मौजूद कि ये इदारे ख़त्म करने तक DHQ अस्पताल अपने बाद ख़त्म किया गया गुज़श्ता मगर लोगों की जो रिजाइनमेंट हुई है लोगों जो एहतजाज किया है तो हुकूमत मजबूरन बहाल किया है। मैं समझना इसी तरह ये जो रेडियो पाकिस्तान का बंदिश का फैसला है जी जिसके खिलाफ असी सारे साफ़ी अदीब शुरा सारे सरापा एहतजाज हैं जी ये इंशाल्लाह ये बहाल हो सी और इस असी इंशाल्लाह जिथे जिस फोरम तक असा जुलना पाया असी चाहे वो हुकूमती वाहना तक भी आवाज़ पहुँचा सा अपनी असी मीडिया के लोग भी शुरा अदीब जितने भी जर्नलिस्ट हैं और अपना अपना किरदार अदा कर सन असी सारे इसकी बहाली एक पेज से मुतहद हाँ मुतफिक हाँ और इंशाल्लाह वज़ीर इसी बहाली से असी अपनी जदोजहद जारी रखी। असल में जब बाद रेडियो स्टेशन की बंदिश के हवाले नाल बेसिकली जितने भी लोग प्रोटेस्ट करने आए ने एहतजाज करने आए ने असी उन्हें खराज तहसीन पेश करने अब्टाबाद प्रेस क्लब प्रिंट मीडिया गंदारा पेशावर इनको बोर्ड और इस अलावा वकला शुरा अदीब आर्टिस्ट जितने भी लोग ने सारे असी एक पेज होते हैं और इससे बाद रेडियो स्टेशन की बंदिश पुरजोर मजम्मत करने हैं और बेसिकली साढ़े अब्टाबाद जितने भी अवामी नुमाइंदे ने MNA और MPs ये उन्होंने जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर अब्टाबाद शहर आ कुछ दे नहीं सकते तो मेहरबानी करके इतों कोई चीज़ बंद ना करो अगर असा हकूक वो असा दिलवा नहीं सकते तो साढ़े जो हकूक ने कम से कम उन्होंने कब्जा ना होने तो मेरी पुरजोर हुकूमत से अपील हो सी कि अगर साढ़े जोड़े अवामी नुमाइंदे ने कोई फर्जंद अब्टाबाद है कोई खादम अब्टाबाद है कोई शहजादा अब्टाबाद है तो अज अब्टाबाद के लोगों को उन्होंने जुबान उन्होंने साफियां की जबान उन्होंने अदीबा की जबान उन्होंने शायरों की जबान और सकाफत की जबान अज गला उसका घूट छोड़ा ने अज उसका गला दबा छोड़ा ने लेकिन साडा कोई सरकारी नुमाइंदा साडा कोई अवामी नुमाइंदा इस मौजू होते किसी प्लेटफार्म होते ना सरकारी सतह होते ना अवामी सतह होते उन्होंने ना कोई प्रोटेस्ट किया और ना इसकी कोई कोशिश की है जिन्हें असी भरपूर मजम्मत करने और असी इस चीज़ का मुतालबा करने कि साडे जितने भी अवामी नुमाइंदे ने वो अपना हक अदा करो और साडे इस अब्टाबाद रेडियो स्टेशन की बंदिश के हवाले नाल अपना किरदार अदा हम साइका नौशीन है और मैं रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद की एक्सीलेंस टैलेंट अवार्ड होल्डर हूँ और बड़े दुख के साथ इस बात का इजहार करना चाहती हूँ बल्कि मेरा ख्याल है कि इनको भी इस गल करने ज़्यादा बेहतर रहसी कि अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद उर्दू पश्तो गोजरी इनको इन 4 ज़बानों में बैक वक्त अपने प्रोग्राम नशर कर रहे हैं और असी फनकार लोग आर्टिस्ट बरदरी मोर देन 2 years असा एक पैसा भी ना करो अपनी परफॉर्मेंस तो नहीं कहता हालांकि AA क्लास कैटेगरी है असां दी
AA क्लास कैटेगरी है असां दी, असां एक पैसा भी नहीं कंदा, असीं जितने कैजुअल आर्टिस्ट हाँ, और फिर भी रेडियो बंद होने की गल हो रही है। बड़े अफसोस की गल है, मिठी रेडियो चल सी जी कि उसका कल्चर है, बटशाह चल सी कि उसका कल्चर है, जबकि हज़ारा लखां दी तादाद दी आबादी है। असां दे ग्रामां दे लोग जिथे केबल नहीं, जिथे नेट नहीं, असां दे किसान भरा, असां दियां घरां विच कम करने वालियां भैणां प्रोग्राम सुनदियां और उसका इतना ज़्यादा फीडबैक आंदा है कि किसी दिन तुसी रेडियो आओ चलदा होवे, तुसी खुद अपनी अखियां नाल देख के नो। मैं सख्त हैरत है इस फजूल तरीन फैसले तो, और उम्मीद है कि इसकी नज़रसानी की जुलसी और इस फैसले वापस किया जुलसी। अगर फैसला वापस ना किया गया तो एबटाबाद हज़ारा दी तारीख हिस्ट्री इन्हां लोकां कदे माफ़ ना करसी, कदे माफ़। ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है हेडक्वार्टर लेवल पे, तो उन्होंने कोई मिनट्स आउट किए हैं जिस पे उन्होंने कुछ 2 स्टेशन को छोड़ के बाकी कुछ लिस्ट ए और बी में नाम दिए हैं, जिसमें एबटाबाद का नाम भी है। ये कहा गया कि ये चूँकि नुकसान में जा रहा है, इसके पे एंड अलाउंसेस जो हैं वो हमारे से नहीं बर्दाश्त हो रहे, और ये मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, सो इसको ख़त्म किया जाए। और ख़त्म ना किया जाए बल्कि ये स्टाफ तो रहेगा, बड़े साहब भी रहेंगे, छोटे साहब भी रहेंगे, चपरासी भी रहेगा, उनको तनख्वाह मिलती रहेगी, बिल्डिंग भी रहेगी, और सिर्फ इसको एक रेडियो रिले जिसको हम RR कहते हैं, जो इस्लामाबाद से प्रोग्राम आएंगे वो इनको आगे से ये रिले कर देगा, मतलब हज़ारा में सुने जाएंगे। तो ये एक आर्जी बंदोबस्त है। 1 साल बाद वो कहेंगे हमारा ट्रांसमीटर इतना अच्छा है कि उसको चीन में भी सुन सकते हैं, लिहाजा इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये एक स्टेज 1 है जिसके ऊपर उन्होंने इसको, वो जिस तरह अंदर उन्होंने कहा कि सिख यूनिट डिक्लेयर किया, सिख के बाद ये इसको मुर्दा करार दे दिया जाएगा। सो उसके लिए सब लोग जमा हुए हैं, यहाँ पे बातें की हैं, आपने सुनी है अच्छी अच्छी, जो असर हक़ाइक़ हैं कुछ लोगों ने वो भी मंज़िल आम पे लाए हैं। तो हमारी एक तंजीम है नेचर कुदरत, जो कि रजिस्टर्ड तंजीम है सूबा सरहद में। हम 2 काम करते हैं, एक ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट के ऊपर। हम कोशिश करते हैं कि जो मुतल्लिका महकमे का सरबराह होता है उससे हम रब्ता करते हैं, उसके नोटिस में लाते हैं, जितनी भी गैर कानूनी या कोई ऐसी बात जो माफ़क ना हो, अवाम के ख़िलाफ़ हो या अवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, उनके हम नोटिस में लाते हैं। तो काफ़ी बातें हमारी सुनी जाती हैं, हल हो जाती है। जिस तरह ये हुआ तो हम मिले इनके जो डायरेक्टर साहबान हैं, हमारे जो MP साहबान हैं, उनको हमने उनको गोश्त गुजारा, लेकिन शायद वो सुनवाई ना हुई। अभी आज ये जो पहला शो है, यहाँ से बाकायदा ये आगाज़ हुआ है कि हम किसी भी सूरत में इसको ना बीमार होने देंगे और ना कल इसको मरने देंगे। ये वह जगह है, फैसिलिटी है जो हमारे लोगों को मुहैया है। यहाँ पे लोग बैठते हैं, यहाँ से वो परवाज़ लेते हैं। आपने देखा सुना काशिफ साहब को कि औरंगज़ेब के नाम से प्रोग्राम करते थे, फिर काशिफ के नाम से प्रोग्राम किया, आज वो K2 TV का लैंडमार्क है। उनका नाम आता है तो K2 TV का नाम आता है तो उनके प्रोग्राम यहाँ से हम रिकॉर्ड करके, आप यकीन करें, USB में या उसमें हम सऊदी अरब में भिजवा देते हैं। वो लगा के सुनते रहते हैं उसको, बार बार उनको मज़ा आता है। ये क्यों है कि एक उनको ऑडियो के साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा वीडियो में मिल गई। कुछ लोग 2-3-4 बैठ जाते हैं, एक तंज़ व मिज़ाह हो जाता है, कुछ ख़ास टॉपिक हो जाते हैं, कुछ काशिफ साहब दबे लफ्ज़ों में सरकार को अवाम के मसाइल से भी आगाह कर देते हैं। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान भी अपने काम तो कर रहा है। ये आप जितने लोग भी हैं, जो काशिफ साहब हमारी जो पैदावार है इसी को हौसले की हैं। आज वो एक इंटरनेशनल अगर आवाज़ है तो किसी ज़माने में वो आवाज़ उनके बकौल स्लैट से परे नहीं जा रही थी। आज चीन में भी सुने जा रहे हैं और सऊदी अरब में भी सुने जा रहे हैं, हर जगह पे। तो इंशाल्लाह हम ये, आपने पहले मेरे से पहले जो वकील साहब हैं उन्होंने आपको कह दिया है, मैंने भी तैयार कर दिया है रेट। हमारी टीम है जो नेचर कुदरत की लीगल टीम है, जफ़र साहब हैं, इकबाल वो हमारे हेड हैं। तो हम खुद ही सारा मिल के काम करते हैं। ये हमारा होता है, ये काम अपना टीम वर्क होता है। शबनम साहब हैं हमारी, अनीरा साहब हैं। तो फिर हम इसको एक मैच्योर करके तो हम जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब कि ये किसी की, ये तो एक अवामी चीज़ है, स्टेट की प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमारा मुंह ज़रूरी है, दिमाग कुछ सोचता है तो मुंह उसको अभी मैं बोल रहा हूँ तो आखिर मुंह मेरा है तो मैं बोल रहा हूँ ना। रेडियो पाकिस्तान जो है वो एक माउथ पीस होता है रियासत का। ये जो देखें, अगर ये ज़रूरी ना हो तो इस वक्त FM 98 चीन वाले यहाँ क्यों चला रहे हैं, FM 99 क्यों चल रहा है, 96 क्यों है। अभी ये मशरूम की तरह ऊपर आ गए FM 2019 में। अभी तो बहुत ज़्यादा है ना ये जो रेडियो स्टेशन है, जो एक मदर ट्रांसमीटर है। बाई चांस हमें मिल गया राजा जफर के ज़माने में, उसको थोड़ा सा हमने उसको इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, उसका ट्रांसमीटर ऊंचा करना है। इंशाल्लाह ये चीन में भी सुना जाएगा। हमारे पास जो 20-25 लाख टूरिस्ट आते हैं वो भी सुनेंगे इसको अपनी मोटरवे पे, सी पैक पे जब चलेंगे। जो
क्रास दी बॉर्डर जो हमारे दूसरे भाई हैं मुसलमान भाई मकबूजा कश्मीर में, वो भी सुनते हैं, वो भी सुनेंगे, और जो अपना हज़ारा है इंशाल्लाह वो भी सुनता रहा है, सुन रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जी। पाकिस्तान का आइन जो है वो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को उनके हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस आइन के तहत जहाँ बहुत सारे हकूक़ फराहम किए गए हैं पाकिस्तान के शहरियों को, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्टिकल 28 ये भी कहती है कि जो मकामी सकाफ़त है आपकी, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना भी ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। और उस आइन की आर्टिकल के तहत इस रेडियो पाकिस्तान जो है ये हमारे हज़ारा की कल्चर है, एक शनाख्त है। तो ये एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर बड़ी सारी बहुत डाइवर्सिटी है, और इस कल्चर के अंदर आपको गोजरी ज़बान मिलती है, कोस्तानी मिलती है, हिंदको ज़बान मिलती है, पश्तो ज़बान मिलती है, और इतना रिच कल्चर है कि ये इतनी इसकी अहमियत है कि अगर ये रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद जो इस हज़ारे की शनाख्त है, अगर इसको रिले करके ख़त्म कर दिया गया तो फिर यहाँ पर लोग जो है उनकी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। और ये पाकिस्तान के आइन के तहत ये रेडियो पाकिस्तान जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो इदारे बनाए जाते हैं, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ से पैसा लेने के लिए इनको नहीं बनाया जाता कि ये अर्निंग सोर्स नहीं होता, बल्कि ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करना ख़त्म कर दिया, अब पूरे हज़ारा रीजन में जहाँ पे इसके 60 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और ऑलमोस्ट 8 मिलियन से ज़्यादा आबादी जो है उसको ये सर्विसेज कैटर कर रही है। अब सी पैक के हवाले से भी इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, बजाय इसके कि इसको मज़ीद एनहांस करें, इसको ये ख़त्म कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जब FM रेडियो स्टार्ट हो जाता है तो FM रेडियो जो है ये कम्युनिटी रेडियो बन जाता है। जब कम्युनिटी रेडियो बन जाता है तो उसको हुकूमत उस वक्त तक ख़त्म नहीं कर सकती जिस वक्त तक वो कम्युनिटी से उसकी इजाज़त न ले ले। अब कम्युनिटी के मफाद के लिए जो काम शुरू कर दिया जाता है उसको बगैर अवाम के पूछे, बगैर अवाम के फोरम्स के आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो गंदारा हिंदको आर्ट जो है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, हमारी सकाफत को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन्होंने इसके ऊपर जो इनिशिएटिव उठाया है ये काबिल तहसीन है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम अनकरीब अपने जो वकला का पैनल है उसकी बुनियाद पर हम अनकरीब हाई कोर्ट में इंशाल्लाह एक रिट करेंगे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कल्चर और सकाफत जो रेडियो प्रमोट कर रहे हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। प्रोग्राम की सबसे बुनियादी बात तो ये रही कि हमें कोई अवामी नुमाइंदा नज़र नहीं आया, और बड़ी हैरत की बात ये थी कि जैसा कि तकरीब में कुछ अफराद ने ये भी बताया कि रेडियो के फ़नकार जब पहुँचे यहाँ के MNA अली जदून के पास कोई रिस्पांस नहीं मिला, मुश्ताक गनी को अप्रोच करते रहे। जब यहाँ के वोट लेने के लिए ये लोग आते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये क्या सकाफत के लिए क्या हम लोग निकलेंगे, क्या आवाम निकलेगी, क्या फनकार निकलेगी, क्या फ़न का मजाक उड़ाया जाएगा, क्या कल्चर को कुछ समझा नहीं जाएगा। ये बहुत सारे सवालात आज के बाद पैदा हुए, और तादाद देख के भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद की जिसकी तवक्को होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी, और जो काबिल अफसोस था। बहरहाल एक गंधारा हिंदू बोर्ड ने ये कदम उठाया, ऐसे जानिब से उठाया गया कि हैरत होती है कि जिनको देखना चाहिए था वो सोए पड़े रहे, उनको कोई दिलचस्पी नहीं। और ये काबिल अफसोस है मुझे एबटाबाद में आने के बाद जो सबसे बड़ा ये झटका यही लगा कि यहाँ के नुमाइंदे कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि ये बंद नहीं होगा। बंद हुआ, नोटिफिकेशन आया, और अभी तक बंदिश का नोटिफिकेशन निकलना भी इस बात का सबूत है कि नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ वोट लेने आते हैं, इसके अलावा उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा, ये देखना चाहिए। रेडियो बहाल हो जाए तो भी ये जो स्याही यहाँ के नुमाइंदों के चेहरों पे लग गई है वो धुल नहीं सकेगी किसी खुलने के बावजूद।